Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So, let's study for all the goals you have set for yourselves, and definitely we will be covering Olympiads as well as your school examinations. All right. So, this is the definitely lecture 2. हमने lecture 1 already study कर लिया है, and we studied electric charge in the previous lecture. आज हम लोग मेनली हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखेंगे एंड वी विल बी स्टार्टिंग फॉर द कूलम्स लॉ. ठीक है. So this is it that we are going to study for today. And if you want study material and DPP, you can definitely go on the Telegram channel. Then you will be having this code on that. ठीक है. टेलीग्राम ऐप पर जाकर आप ये कोड लिखेंगे TTB010, that is your code for class 10. ठीक है. And you have to write this code, you have to join the channel, and then you can have the DPPs and study material. Okay, and the next important thing I wanted to tell you is this. We have created some packages for you, that is for the people who really want to succeed in their competitions, level examinations or school level examinations. So a very much directional and organized study material is provided to all by these packages. So there are different features for every package. So you have to go on www.talkingtextbooks.in. There you will be having such type of packages. This is just an example. So you will be having such type of packages there, and you will be getting comprehensive study material recorded in live classes, homework submission, bi-weekly quizzes, periodic test papers, all such thing in just a single package. All right, and then you will be having all such features just to get your goal definitely in some achievable position, right? And you have to click on buy now. Then you will be forwarded on price details page. There you can see 9,000 is written, right? So if you write here CYLIVE, you will be getting 30% discount on every package, not on this package, but for every package you can write this code and you can get 30% discount on that package. Okay, and now the cost becomes 6,300. Then you have to click on buy package and you will be forwarded to all the options you can choose to pay, right? If you have any query, you can definitely call on this number. Your query will be resolved as soon as possible. So that is the thing I wanted to tell you. Now let's start the topic. This is lecture 2, right? And just take out your copies and books. Promise yourself you will be watching the whole lecture. You will be definitely making proper notes and you will be revising it on the daily basis. So I hope कि आपने lecture 1 revise कर लिया है. ठीक है. चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. ये कंडक्टर्स हम लोग डेफिनेटली क्लास लेक्चर 1 में स्टडी आउट कर चुके थे. So you definitely know what are conductors, what are insulators, semiconductors. We have studied what is electric charge, right? And then we have studied what are the things that are inside the nucleus, right? All the things that are there. Atom, उसके अंदर होता है nucleus, protons, neutrons, electrons, ठीक है? And then हमने देखा कि भाई एक पूरा एटम के ऊपर चार्ज कितना होता है, ठीक है, वो हमने देखा, एंड दैट इज 0. अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा कि एटम के ऊपर चार्ज 0 होगा, ठीक है, बिकॉज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाते हैं, सो दे न्यूट्रलाइज द चार्ज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था चार्ज ऑन अ मैक्रो बॉडी. एटम तो बहुत ही स्मॉल लेवल पे हो गया. इफ यू वांट टू नो द चार्ज ऑन अ मैक्रो बॉडी, जस्ट लाइक कॉम, ठीक है, जो हमारी कॉम होती है, हमने उसको रब किया, नाउ इट अटेन सम चार्जेस, तो अब वो चार्ज हो गई है. इसका मतलब वो कैसे हुई, कुछ ना कुछ तो हुआ है. इधर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं या फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर किसी और बॉडी में चले गए हैं. ठीक है. सो दैट इज द केस कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से तो मैक्रो बॉडी कैसी हो जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने पर क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज. और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ठीक है. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. वी हैव डेफिनेटली सीन पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, and then we have studied what, charging by friction. This was the thing we have studied, and now we will be going for charging by induction. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, वी जस्ट रब टू बॉडीज. रबिंग की वजह से क्या हुआ था, उनकी सरफेसेस आपस में
फ्रिक्शन को पैदा कर रही थी, एंड देन जो फ्रिक्शन की वजह से जो सरफेसेस है वो हीट अप हो जाती है। उस हीट को इलेक्ट्रॉन, सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड दे मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, वो जंप कर जाते हैं, नॉट वी कैन से मूव, बट वो जंप कर जाते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। अब हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी बॉडी के ऐसा पावर हो कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर ले, दैट पावर इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि कोई भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, उनको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी चार्जिंग बाय इंडक्शन। डेफिनेटली आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे ही नेगेटिव चार्ज वाली जो रॉड है उसको पास लेकर आए तो क्या हुआ, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज रिपेल हो गए और उससे दूर चले गए, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है, जब कभी भी सेम चार्ज होते हैं ना तो वो रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं। तो जितने देखो पॉजिटिव चार्ज तो वहीं के वहीं हैं, दे आर नॉट मूविंग एट ऑल। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो दूर चले जाते हैं। अगर हम इसको दूर लेके जाएंगे तो वो वापस से अपनी जगह ले लेंगे, पास लेकर आएंगे तो वापस से वो क्या हो जाएंगे, एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्या हम यहाँ पे टच कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। ये तो फिर भी एक प्रॉपर्टी है दैट दिस इज हैपनिंग, कि भाई जब हम इंडक्शन को बता रहे होते हैं तो सच टाइप ऑफ थिंग इज हैपनिंग। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू द होल प्रोसेस कि भाई हम किस तरीके से किसी भी एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आप यहाँ देखेंगे, लेट्स सी दिस इज अ स्फीयर। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ स्फीयर, और हमने क्या किया है, इसको एक इंसुलेशन पे माउंट कर दिया है। ठीक है, लेट्स से कि हमने इसको इंसुलेट कर दिया है। नीचे जो हमने बेस बनाया है, यू कैन से इट इज मेड अप ऑफ वुड। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हैं कि ये अब एक इंसुलेटर बेस पर ये स्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, चार्ज करना है, एंड दिस इज अभी न्यूट्रल, ये अभी न्यूट्रल है। नाउ लेट्स डू इट। हम क्या करेंगे, इसके पास एक रॉड लेकर जाएंगे। ठीक है, एक रॉड है जो कि हमने चार्ज ऑलरेडी की, जस्ट बाय रबिंग और किसी भी मेथड से हमने उस रॉड को पहले से चार्ज कर दिया। लेट्स से कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब आपको ये बात तो पता होगी कि जब ये बॉडी पूरी की पूरी होल है तो इसके ऊपर क्या है, चार्ज जीरो है। जब तक ये चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, तो हम ये बोलेंगे टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, जीरो। तो अभी इनिशियली हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इनिशियली टोटल चार्ज इज जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इक्वल थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम प्लस चार्ज वाली बॉडी को इसके पास लेके जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, इस सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा, एंड पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा, एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड पॉजिटिव इज पॉजिटिव रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इस रॉड को इस सर्कुलर बॉडी, स्फेरिकल बॉडी के पास लेके गए तो क्या हुआ, इस सर्कुलर बॉडी में अभी तो टोटल नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं वो इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इस वक्त इस पोजीशन पर भी इक्वल है। हालांकि अलग अलग हो गए हैं, पॉजिटिव एक तरफ हो गए हैं, नेगेटिव एक तरफ हो गए हैं, बट अभी भी क्या है, ये टोटल चार्ज इस पे जीरो ही माना जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो गया और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ट्रिक करने की कोशिश की। क्या ट्रिक करने की कोशिश की, हमने इसे यहाँ से टच नहीं करवाया है, हमने इसे टच नहीं करवाया है। वाइल होल्डिंग अप हम क्या करेंगे, इन नेगेटिव को यहीं पे रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रॉड को यहाँ से दूर नहीं लेके जाएंगे, इसी के पास रखेंगे। हम टच नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पास में रख रहे हैं। जैसे ही हमने पास में रखा तो ये सारे के सारे नेगेटिव वाले जो चार्ज है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या करेंगे, इस सरफेस पे कलेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, एक छोटी सी चीटिंग करी। वो क्या किया, हम लोगों ने
यहाँ से जब वो इसके पास था, जब तक पावर ने मतलब यहाँ पे नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, वैसे ही हम इसे क्या कर देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं, हम इसे अर्थ से जोड़ देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंसुलेशन। इसका मतलब हम इसे अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं बाय अ वायर और समथिंग, ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कंडक्टिंग वायर हो तो बहुत ही बढ़िया हो। जैसे ही हमने इसे अर्थ से कनेक्ट किया, वैसे ही क्या होगा, अर्थ के अंदर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये वाला जो प्लस चार्ज है ना, इसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जितने भी चार्जेस हैं, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और जैसे ही ये जीरो हुए, वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर फटाफट से इसको इंसुलेशन को हटा दिया। अब ये वाला जितना भी चार्ज है, ये सारा का सारा चार्ज कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इट वुड बी लाइक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस रॉड को दूर लेकर चले गए। अब हमने जब दूर लेके चले गए, तो इट वुड बी लाइक ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये पूरे उस पर क्या हो जाएगा, पूरे उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड हमारी जो बॉडी होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। इसके कुछ प्रोसेस जो कि मैं आपको बताती हूँ, आपको प्रोसेस कैसे याद रहेगा, किस तरीके से करना है, ठीक है। लेट्स से हम ना इसको डायग्राम से समझते हैं, सिर्फ डायग्राम से, वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, ठीक है। तो लेट्स अगेन मेक दैट डायग्राम, ताकि आपको सारे स्टेप बाय स्टेप पता चल सके व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक स्फीयर को लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने एक स्फीयर को लिया, एंड दिस इज अ मेटालिक स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है भाई मेटालिक स्फीयर है और इंसुलेशन पे रखा हुआ है, कैप्ड ऑन इंसुलेटेड बेस, ठीक है। अब हमने क्या किया, मेटालिक स्फीयर को रख दिया। अब हम ये पूरा का पूरा तरीके से अनचार्ज्ड बॉडी है राइट नाउ, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 0 है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके पास एक रॉड लेकर आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी चार्ज्ड है, लेट्स से इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हमने क्या किया, ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा रखा हुआ है अभी भी सेम टू सेम, बट हमने एक काम किया, हम फटाफट से इसके पास लेकर गए, एक चार्ज रॉड को लेकर गए, ठीक है। दिस इज अ चार्ज रॉड, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो जैसे ही हम इस प्लस चार्ज को लेकर आए इसके पास, ठीक है, इस बॉडी के पास लेकर आए, वैसे ही सारा नेगेटिव चार्ज उस तरफ इकट्ठा हो गया जहां की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, और प्लस चार्ज रिपेल होकर कहाँ चला गया, अपोजिट चला गया। तो अब क्या देखेंगे, इस वक्त तो सब एक जैसा है, सब यूनिफॉर्म है, सब फैला हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बट यहाँ पर जैसे ही हम प्लस चार्ज वाली रॉड को लेकर आए, तो इस रॉड ने क्या किया, नेगेटिव चार्जेस को तो उस सरफेस की तरफ अट्रैक्ट कर लिया। हम लोग यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं ना, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, हम टच नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब बिना टच करे बॉडी को चार्ज कर देना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं, एंड सिर्फ इस अट्रैक्शन का फायदा उठा रहे हैं कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पास में आएंगे इस मेटेलिक बॉडी के, सारे नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, बिकॉज नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव से, और इस बॉडी के जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो अपोजिट सरफेस पर इकट्ठे हो जाएंगे, बिकॉज दे आर इन रिपेलिंग पोजीशन, ठीक है। वो प्लस से रिपेल हो जाएंगे तो वो दूर चले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने किया, वो नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम लोगों ने इसको अर्थ से कनेक्ट किया, मतलब हम लोगों ने इसको चीट किया। लेकिन हम ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि हम रॉड को दूर नहीं लेकर गए हैं, ठीक है। रॉड अभी भी इसके पास ही है, नेगेटिव चार्ज को होल्ड किए हुए है, ठीक है। जितना भी प्लस चार्ज था उसको जरूर हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इंसुलेशन। किसी भी वायर से, लेट्स से कॉपर वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, जैसे ही हमने कनेक्ट किया वैसे ही क्या हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स धरती माता में से बाहर आए एंड दे न्यूट्रलाइज द प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ पे जितना भी प्लस है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसे ही न्यूट्रलाइज हुआ, हमने क्या किया, हमने इसको हटा दिया, ठीक है। हमने इसको हटा दिया, कब हटाया, जब हमने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है।
चले, अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो ये स्टेप है कि अब हम बॉडी को लेके चले गए दूर। ये जो हम लोग रॉड लेकर आए थे ना, अभी इस रॉड को हम लोग दूर लेके चले गए, ठीक है। अब हम लोग इसको दूर लेके चले गए तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके ऊपर जितना भी जो नेगेटिव चार्ज है जो अभी रह गया है इसके ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव तो खत्म हो गया है ना, अब इसके पास कौन रह गया, सिर्फ नेगेटिव रह गया। अब ये जो नेगेटिव है वो पूरे उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नेगेटिव बॉडी अब हो गई है चार्ज, मतलब ये जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई है। किसकी वजह से, इस पॉजिटिव रॉड की वजह से। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट नोटिस करी, नंबर 1 कि यहाँ पर हम लोगों ने बॉडी को टच नहीं करवाया, चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी से टच नहीं करवाया, ठीक है, सिर्फ पास में लेकर गए। जैसे ही हम लोग पास में लेकर गए वैसे ही नेगेटिव सारे के सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करने लगे, तो वो उस सरफेस पे चले गए, ठीक है, सब इस सरफेस पे इकट्ठे हो गए जस्ट बिकॉज वो अट्रैक्ट होना चाहते थे पॉजिटिव वालों से, ठीक है। अब जो पॉजिटिव वाले थे वो रिपेल हो गए और वो दूर वाली सरफेस पर चले गए, ठीक है। हमने ट्रिक करके इनको क्या किया, जो दूर चले गए थे इनको फटाफट से न्यूट्रलाइज कर दिया, इनको खत्म कर दिया। न्यूट्रलाइज करने का मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव करके जीरो बना देंगे इसको, सो इट वुड न्यूट्रलाइज देम। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस रॉड को दूर लेके हटा दिया, दूर लेके चले गए। अब क्या होगा, जो नेगेटिव इधर इकट्ठा होके रखा हुआ था, ये पूरा का पूरा जो नेगेटिव इकट्ठा होके रखा था वो पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ द बॉडी इज चार्ज। तो आपको टू मेन चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 कि हम लोगों ने एक तो पहले टच नहीं किया, नंबर 2 यहाँ पर आप जिस चार्ज की बॉडी लेकर आओगे उसके अपोजिट चार्ज हो जाएगी दूसरी बॉडी। जैसे यहाँ पे मैं प्लस रॉड लेकर आई थी, ठीक है, तो ये जो प्लस रॉड में लेकर आई थी इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर जितना भी चार्ज था प्लस वाला वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपोजिट चार्ज हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। बट जो हम कंडक्शन का प्रोसेस सीखेंगे उस प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे दैट कि यहाँ पे जिस भी चार्ज का बॉडी अगर आप लेकर आएंगे उसके अपोजिटली चार्ज दूसरी बॉडी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की रॉड लेकर आती तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती, ठीक है। तो दैट्स हाउ हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन को प्रोसेस को पूरा समझ के और देखते हैं कि हम उससे किस तरीके से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब हम देखते हैं हाउ टू चार्ज अ बॉडी यूजिंग द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन के प्रोसेस में हम लोग कैसे करते हैं, इस बार हम क्या कराते हैं, टच करवाते हैं, ठीक है। वी डू टच द बॉडी, एक चार्ज बॉडी को लेकर आ रहे हैं और टच करवा रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी अगेन, मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया है। अगेन एक मेटेलिक स्फीयर लिया है, ठीक है, ये एक न्यूट्रल स्फीयर है, अभी ये न्यूट्रल स्फीयर है, ठीक है। और हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग अगेन एक वापस से रॉड लेकर आएंगे और वो रॉड हम लोग एक चार्ज रॉड होगा, ठीक है। तो दिस इज अ चार्ज रॉड जो कि हम लोग लेकर आए हैं, लेट्स से इट इज प्लस। अब ये जो प्लस वाली रॉड है हम क्या करवाएंगे, इसको टच करवाएंगे। जैसे ही हमने इसको टच करवाया वैसे ही क्या हुआ देखते हैं। इसका जो अगला स्टेप है वो ये कि इस बॉडी को जैसे ही हमने टच करवाया, ठीक है, इस प्लस को हमने जैसे ही टच करवाया वैसे ही क्या होगा, इस बॉडी के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, वो क्या होगा, इधर की तरफ फ्लो होने लग जाएंगे, ठीक है। टच हो गया, कांटेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा, उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये सारा नेगेटिव चार्ज कोशिश करेगा कि इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो सब का सब फिनिश हो जाए। एंड देन क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर वहां चले जाएंगे।
अब जब वो चले गए, जब उन्होंने प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने इस बॉडी को हटा लिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद, टच करवाने के थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, फटाफट से इसको रिमूव कर दिया। और जब हम रिमूव करेंगे तो अगेन इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो इतने सारे थे ना, अब इसके ऊपर कम बच गए, क्यों, क्योंकि कुछ तो न्यूट्रलाइज हो गए इलेक्ट्रॉन से। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से कुछ नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया, तो इसके ऊपर बताओ कौन सा चार्ज होगा, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पे अब किसका नंबर ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, प्लस चार्ज ज्यादा हो गया। इसकी वजह से इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। सो दैट्स हाउ हमने क्या किया, कंडक्शन की प्रोसेस से एक बॉडी को चार्ज कर दिया। नंबर वन इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है, नंबर वन कि हमको टच करना पड़ेगा, ठीक है, तभी कंडक्शन का प्रोसेस हो पाएगा। नंबर टू ये देखना है आपको कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है, देखो इसमें दोनों में सेम चार्ज है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज वाली लेकर आती तो क्या होता, लेट्स से कि भाई अब की बार मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे ही पूरा स्फीयर लेके और इसके पास लेकर जा रही हूँ नेगेटिव चार्ज वाली रॉड, ठीक है, मैं नेगेटिव चार्ज वाली रॉड लेकर जा रही हूँ। नाउ लेट्स कनेक्ट देम, जैसे ही हम इनको कनेक्ट करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलो देखो यहाँ पर मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, दीज आर द नेगेटिव, ठीक है। और अब देखेंगे क्या होगा, ये है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी ऐसा है कि यहाँ पे पूरा अभी इक्वल था, टच करवाने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, दे विल मूव हियर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, तो क्या होगा कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, पहले बराबर थे प्रोटॉन्स के, बट जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पर आ गए तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, इनको हटा देंगे, जैसे ही हमने हटाया वैसे ही क्या हुआ, हमको पता चल गया कि इस बॉडी के ऊपर अब जो है पॉजिटिव चार्ज बच गया, ठीक है। तो वी वुड से कि भाई यहाँ पर नेगेटिव जो था वो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जितना पॉजिटिव था वो तो यहीं का यही रहेगा, बट जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए, जो इस रॉड पे से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पर आए हैं, वो सबके सब आपस में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरी सरफेस पे, और वो नेगेटिव चार्ज बना लेंगे। तो देखो हम कंडक्शन की प्रोसेस से ये बोल सकते हैं कि जब हम कंडक्शन का प्रोसेस करेंगे तब सेम चार्ज दूसरी बॉडी पर भी आएगा, ठीक है। मैंने पॉजिटिव चार्ज की जब रॉड लेकर गई इस बॉडी पर, तब क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, फाइनली मैं पॉजिटिवली चार्ज हो गई। जब मैं नेगेटिव चार्ज वाली रॉड लेके आई तो ये वाली बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो इसका मतलब जिस भी चार्ज की, जिस भी टाइप ऑफ चार्ज को मैं लेकर जाऊंगी बॉडी के पास, वो वही चार्ज क्या कर लेगी, अपने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कंडक्शन में। लेकिन इंडक्शन में डिफरेंट होता है, हम जिस भी बॉडी का, जिस भी काइंड ऑफ चार्ज, लेट्स से पॉजिटिव लेकर गए तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और जब हम नेगेटिव चार्ज लेकर गए तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन एंड द इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली नोट डाउन कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स, जिसमें हम लोग लिखेंगे दैट ये दो डिफरेंट केसेस है पहले तो, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं when a charged body is connected to a neutral body or say uncharged body, then the charges move from one body to another making neutral body charged.
ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग चार्ज बॉडी को कनेक्ट करेंगे टू द अनचार्ज बॉडी, तब क्या होगा, जो चार्जेस हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो हो सकते हैं, क्योंकि अब तो कनेक्शन है तो डेफिनेटली फ्लो हो सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ वो क्या करेंगे, मेकिंग न्यूट्रल बॉडी चार्ज, तो वो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बना देंगे, ठीक है, दे मेक दैट चार्ज। अब आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस हाउ टू चार्ज अ बॉडी बाय कंडक्शन। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई हम लोगों ने चार्ज कर लिया बॉडी को, ऐसे 3 मेथड से हम लोगों ने देख लिया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हाउ टू डू दैट, चार्जिंग बाय इंडक्शन, हाउ टू डू दैट, चार्जिंग बाय कंडक्शन, हाउ टू डू दैट, राइट। एंड डेफिनेटली अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे पेयर्स जो कि आपस में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से रब होकर क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को चार्ज कर सकते हैं। तो देखेंगे, जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब करते हैं, जस्ट लाइक लेट्स से कि आपने ग्लास रॉड लिया और उसको सिल्क के क्लॉथ से रब करने की कोशिश की ना, जब हम ऐसा करेंगे तो जो ग्लास रॉड होगा वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब इट विल अपीयर कि उसके ऊपर से जो नेगेटिव निकल कर सिल्क में चले गए, राइट। इलेक्ट्रॉन्स निकल कर, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब के सब निकल के कहाँ चले गए, इस वाली बॉडी पे चले गए। दैट्स वाई, तभी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, तभी तो ये नेगेटिवली चार्ज हुई। जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है इसका मतलब उसके अंदर कमी हो गई नेगेटिव की। अब कमी कैसे होगी, जब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी बॉडी पे चले जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, सो दीज बॉडी बिकम नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर प्रोटॉन्स क्या हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। सो दैट्स हाउ इनको हम क्या बोलेंगे कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है टोटल, राइट। तो देखेंगे, जब कभी भी हम किसी वुलन क्लॉथ को या फिर फर को इबेनाइट, एम्बर या फिर रबर रॉड पर क्या करेंगे, रब करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, ये जो वुलन क्लॉथ होगा ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दैट मीन्स इस वुलन क्लॉथ या फिर फर में से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इबोनाइट, एम्बर या फिर रबर पर जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही वुलन कोट को अगर हम रब करेंगे किसी प्लास्टिक सेट से, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि रियल लाइफ में होता है, जब कभी हम डेफिनेटली सर्दियों में हम लोग वुलन क्लोथ्स तो पहनते ही पहनते हैं, राइट। लेकिन अगर हम किसी प्लास्टिक की चेयर पर बैठ जाएं, या फिर लेट्स से हम लोग वैसे प्लास्टिक का चेयर वुड बी सो मच, जैसे प्लास्टिक का टेबल है आप उसके ऊपर बैठ गए, चेयर ही वैसे अवेलेबल होती हैं, अगर आप उसके ऊपर बैठ जाते हो तो जब आप उठोगे तो आपको चट चट की आवाज़ सुनाई देगी। वो चट चट इसी वजह से है बिकॉज द बॉडी इज चार्ज, दोनों ने रब किया, वुलन कोट ने और चेयर ने तो रब किया, दैट्स वाई वहां पे चार्ज एक बॉडी से उछल के दूसरी बॉडी में चले गए। कौन कहाँ से गया, वुलन कोट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर प्लास्टिक सेट में चले गए, नाउ दे मेक इट नेगेटिवली चार्ज, अब वो प्लास्टिक जो सेट है वो नेगेटिवली चार्ज है। सो अब क्या होगा, आप जब कभी भी उसको कोशिश करेंगे, जब मतलब कभी कभी आपको ऐसा झटका भी लग सकता है हल्का फुल्का, और आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज वहाँ पे ये चार्जेस इकट्ठे होके रहते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली प्लास्टिक क्या है, एक इंसुलेटर है, तो वो आगे फॉरवर्ड तो करेगी नहीं चार्ज, वो एक ही सरफेस पे इकट्ठा करके वहीं के वहीं रह जाते हैं चार्जेस, दैट्स वाई हम लोग को कभी कभी फील भी हो जाता है, ठीक है। नायलॉन और एसीटेट को अगर हम रब करेंगे विद द रबर शूज, तब क्या होगा, डेफिनेटली नायलॉन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और रबर शूज हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देन ड्राई हेयर और कॉम, ये तो नॉर्मल हम लोग करते हैं, अगर ड्राई हेयर्स पे अगर हम कॉम कर लें तो बॉडी दोनों चार्ज हो जाती हैं। जो हमारा ड्राई हेयर है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ चले गए, कॉम्ब में चले गए, नाउ द कॉम्ब विल बिकम व्हाट, द नेगेटिव चार्ज, एंड द ड्राई हेयर बिकम्स द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दैट्स वाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं से जा रहे होते हैं और हमारे बाल बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, वो इसी वजह से हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी होगी चार्ज, दैट मीन्स अगर हमारे हेयर्स होंगे चार्ज, तो फिर क्या होगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कभी कभी जब हमारे बाल सीधे कभी खड़े हो जाते हैं, लेट्स से भाई ऐसा कई बार हो चुका है, ठीक है, हो जाते हैं खड़े, तो ऐसा किस वजह से होता है, ड्यू टू दी स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक क्यों बोले, बिकॉज ये लोग मूव नहीं करते हैं, ये उसी सरफेस पर इकट्ठे होकर रहते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई वी टॉक देम स्टैटिक। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि ये जितने भी पेयर्स हैं ना, दीज आर द पेयर्स लाइक
लेट्स से ड्राई हेयर एंड कॉम, इट फॉर्म्स अ पेयर, ठीक है। ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, ये भी एक पेयर है। तो ये आपस में क्या है, एक पेयर बना रहे हैं एंड दीज शुड बी यूज्ड एज अ पेयर। अगर हम जैसे ड्राई हेयर और लेट्स से रबर रॉड की बात करें तो ये उतना इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में नहीं बताएंगे। यू हैव टू मेक देम एज अ पेयर। लाइक अगर मैं इनकी बात कर रही हूँ तो दे शुड बी यूज्ड एज अ पेयर, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो यू मस्ट नोट इट डाउन डेफिनेटली। चलिए अब हम मूव करते हैं टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अभी जैसे हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि कैसा बिहेव करते हैं चार्जेस। चार्जेस का बिहेवियर देखने के लिए वी शुड नो कि चार्जेस का प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी क्या कहती है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर प्लस प्लस की बात होगी तो दे विल रिपेल, हम लोगों ने अभी देखा था एनिमेशन में, ठीक है। अगर हम नेगेटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के दूर जाएंगे, ठीक है। अगर हम प्लस और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, लाइक प्लस एंड माइनस की बात करें तो दे विल अट्रैक्ट, ठीक है। हम लोग डेफिनेटली ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि अगर हम क्या करें, दो ऐसे मेटेलिक सरफेसेस ले लें, उनको पॉजिटिव चार्ज कर लें एंड एक थ्रेड से उन्हें लटकाएं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों स्फीयर आपस में दूर जाने की कोशिश करेंगे, दे विल रिपेल, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, दैट्स व्हाई दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इसी तरीके से अगर मैं दोनों पे नेगेटिव चार्ज बना दूं, किसी तरह उन दोनों को नेगेटिव चार्ज कर दूं, तो दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। लेकिन अगर किसी दो न्यूट्रल अगर हम लोग स्फीयर्स को ले ले, उनको लटका दे, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज न्यूट्रल है, तो इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, तो दे विल स्टे एज इट इज। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमने एक को प्लस और एक को माइनस कर दिया तो दे विल कम टूवर्ड्स ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इसी की वजह से आप बता पाएंगे कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स रिपल्सिव है या फिर अट्रैक्टिव। अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, सेम साइन के चार्जेस हैं, देन वी वुड से कि भाई ये तो रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर उन दोनों पे डिफरेंट साइन है चार्जेस के, देन वी वुड से कि भाई वहां पे अट्रैक्शन होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डेफिनेटली ये किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते 2 कूलम ईस्ट में है एंड 5 कूलम वेस्ट में है, कोई मतलब नहीं है इसका। वी जस्ट टॉक अबाउट चार्ज, और ये एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बताया था ना, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो कि उस बॉडी से अलग नहीं की जा सकती। सो दैट इज द थिंग। जैसे मास किसी बॉडी का होता है ना, जैसे हम मास को क्या बता सकते हैं कि भाई उसको अलग नहीं कर सकते, और मास का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट कि इस बॉडी के का मास 30 kg है, तो दैट इज इट, यही उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है, उसका मास 30 kg है। इसी तरीके से चार्जेस का भी सेम टू सेम यही कहना है कि भाई अगर मैं बोलूंगी कि किसी एक बॉडी पे 2 कूलम चार्ज है, तो है, अब उसमें डायरेक्शन कोई रोल प्ले नहीं कर रही है। वी आर नॉट सेइंग कि भाई 2 कूलम ईस्ट डायरेक्शन में है और 3 कूलम वेस्ट डायरेक्शन में है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट डज नॉट नीड एक्चुअली डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे as charge does not need direction for its description। खुद को डिस्क्राइब करने के लिए इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसको डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। खुद को क्या करने के लिए, खुद को बताने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। मुझे अगर किसी बॉडी का चार्ज एक्सप्रेस करना है तो आई वुड से दिस इज 5 कूलम, माइनस 5 कूलम, प्लस 5 कूलम। ये जो प्लस माइनस है, ये डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, दिस इज शोइंग जस्ट द नेचर ऑफ चार्जेस, कि भाई वहां पे कैसा नेचर है। कई लोग इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई प्लस माइनस है तो इसका मतलब
अगर हम एक तरफ प्लस ले रहे हैं तो दूसरी तरफ नेगेटिव ले रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ चार्जेस। ठीक है, हम लोग बता रहे हैं कि एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, ये जस्ट हम इनको बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं हाउ देयर आर टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्लस डायरेक्शन ये है और माइनस डायरेक्शन में इतना है, ये नहीं कह रहे हैं। वी आर जस्ट शोइंग कि ये नेगेटिव चार्ज है एंड दिस इज द पॉजिटिव, दीज आर जस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, कई लोग अगर पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं बताना चाहते तो दे कैन डेफिनेटली यूज कलर्स, जैसे रेड को हमेशा हम प्लस बोल रहे हैं, ठीक है, ब्लू को हमेशा हम नेगेटिव बोल रहे हैं, तो अगर हम प्लस माइनस नहीं बताना चाहते तो हम ब्लू और रेड यूज कर सकते हैं। बट अगर हम ऐसा करेंगे तो एग्जाम में लिखने के लिए भी हमको कलर से लिखना पड़ेगा, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमको प्लस और माइनस एक साइन तो चाहिए ही चाहिए, और सिर्फ इसी की वजह से हम लोगों ने प्लस और माइनस को यूज किया। इनका रिलेशन डायरेक्शन से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट भैया, सचमुच में इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिकॉज प्लस माइनस यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपको टाइप दिखा रहा है कि भाई हम कौन से टाइप की बात कर रहे हैं, प्लस वाले टाइप की बात कर रहे हैं चार्जेस का या नेगेटिव टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड बहुत बड़ा सा अजीब सा नाम है ना, बट ये बहुत ही इजी है। एक मिनट, ये जो वर्ड है क्वांटाइज्ड, ये बहुत इजी है। इसका मतलब ये है कि चार्ज, जैसे लेट्स से इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी में दूसरे बॉडी में गया तो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे रह गया और आधा इलेक्ट्रॉन अगली बॉडी पे चला गया, ऐसा नहीं होता। हम हमेशा बात करेंगे तो पूरे एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ठीक है, लेट्स से हम जब बात करेंगे कि भाई हम रब कर रहे हैं दो बॉडीज को, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो मैं बोल रही हूँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन यही रह गया और 3 इलेक्ट्रॉन पूरे चले गए, एक आधा रह गया, ऐसा नहीं होता। या तो 3 पूरे जाएंगे, या तो 2 पूरे जाएंगे, या तो 10 पूरे जाएंगे, या तो 15 पूरे जाएंगे, बट पूरे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आधा उधर छूट गया, 1/4 उधर छूट गया, दैट्स नॉट पॉसिबल। एंड यही लाइन हमको ये बताने की कोशिश कर रही है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फुल इलेक्ट्रॉन्स जाता है। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बताते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ चार्ज्ड बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। अब इसको मैथमेटिकल कैसे लिखे कि हम बता रहे हैं कि एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में चार्ज जाएगा तो पूरा का पूरा चार्ज जाएगा। कैसे बताएंगे इसको हम लोग लिखेंगे किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इसको हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू NE। यहाँ पर ये जो Q है ना, ये जो Q है, दिस इज शोइंग टोटल चार्ज। ठीक है, ये जो कैपिटल Q है ये बॉडी का टोटल चार्ज आपको बता रहा है। N इज द N इलेक्ट्रॉन्स, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और E क्या है, E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो क्या होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो N है ना, इसका वैल्यू कितना हो सकता है, इसका वैल्यू हो सकता है प्लस माइनस इंटीजर। जैसे यहाँ पे हो सकता है माइनस का 3, N का वैल्यू हो सकता है माइनस का 3, तो मैं बोलूंगी उसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, नेगेटिव वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 500 बोल सकती हूँ, 500 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, वी कैन से दैट, या 500 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वी कैन से दैट, बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूरे इलेक्ट्रॉन्स की। कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे जाएंगे, फुल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन पीछे रह गया या फिर हाफ इलेक्ट्रॉन पीछे रह गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो N का वैल्यू है क्या होगा, वैल्यूज ऑफ N आपको कैसी मिलेंगी, एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, माइनस का 3, प्लस का 2, माइनस का 500, प्लस का 50,
ये इतने सारे वैल्यूज हो सकते हैं, बट ये तो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है, जो वैलिड हैं। नॉन वैलिड कौन सी है? जो नहीं हो सकती, जो पॉसिबल नहीं है। वो वैल्यू जो नहीं हो सकती वो है +½ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आधा इलेक्ट्रॉन पीछे रह गया, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। -3/2 बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके की वैल्यूज इज नॉट वैलिड, ठीक है। हम लोग यहाँ बात करेंगे चार्ज इज क्वांटाइज, दैट मीन चार्ज जाएगा तो पूरा का पूरा ही जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे इफ सिस्टम हैव एन इलेक्ट्रॉन, सिस्टम मतलब एक पूरी बॉडी, लेट्स से अ मैक्रो बॉडी, ठीक है, हैव एन इलेक्ट्रॉन्स, देन चार्ज ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय n into e, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? टोटल चार्ज मिलेगा ऑन द बॉडी, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो E है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, ये E आपको बता रहा है, ठीक है। देखेंगे इसका जो वैल्यू है वो एज इट इज है, बट अगर यहाँ पे n प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस, और माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस। तो पे नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब n का वैल्यू नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब n का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डील विद द क्वांटाइज्ड चार्ज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का क्या मतलब है कि भाई चार्ज जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक बॉडी से उठा के दूसरी बॉडी में डाल सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। एंड डिफरेंट थिंग इज कि भाई लेट्स से ये एक सिस्टम है, ठीक है, लेट्स से इसके अंदर मैंने 2 मेटालिक बॉल्स डाली हुई हैं, इट्स अ बॉक्स, और मैंने इसके अंदर क्या किया है 2 मेटालिक बॉल्स डाल दी हैं, और वो ऐसी मेटालिक बॉल्स है कि मैंने उन्हें धक्का दे दिया, ठीक है। नाउ अब वो क्या करेंगी? मूव करेगी, जैसे मैंने उन्हें धक्का दिया दे विल मूव अगेन ईच अदर, और जब वो एक दूसरे से मूव करेगी तो लेट्स से कि भाई वो क्या कर रही है, एक दूसरे से रब कर रही है, एंड व्हेन दे रब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स तो देंगे ही सही, ठीक है। तो लेट्स से इसके ऊपर +1 कूलम चार्ज आ गया, इसके ऊपर -1 कूलम चार्ज आ गया, लेट्स से अगर ऐसा हो गया, फिर भी अगर मैं इन दोनों का ऐड करूं, टोटल इस बॉडी का टोटल निकालूं, तो टोटल चार्ज वुड बी हाउ मच? टोटल चार्ज वुड बी 0। अंदर कुछ भी हो रहा हो, अंदर बॉडी के मतलब उस सिस्टम के अंदर कितने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी पे जा रहे हो, कितने ही इलेक्ट्रॉन्स पहली वाली बॉडी ले रही हो किसी और बॉडी से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। When we talk about the total charge on the system, ये मैंने एक पूरा सिस्टम लिया है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर मैंने 2 बॉल्स डाली हैं, मेरा मन करेगा तो मैं 4-5 भी डाल दूंगी और उनको मूव करवा दूंगी। अगर वो मूव कर रही है, रब करेंगी, वो रब करेंगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर डेफिनेटली जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गए तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ और चार्ज, किसी दूसरी बॉडी पे कुछ और चार्ज, तीसरी पे कुछ और चार्ज, लेकिन टोटल की अगर मैं बात करूंगी तो दैट वुड बी ऑलवेज 0, एंड दैट शोज दैट चार्ज इज कंजर्व्ड। हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज दे सकते हैं, दूसरे बॉडी से चार्ज ले सकते हैं, बट हम चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, ना ही हम उसको बना सकते हैं। ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है जब तक हम हाई एनर्जी फिजिक्स ना पढ़े। हाई एनर्जी फिजिक्स में थोड़ा बहुत पॉसिबल है, फिजिसिस्ट ट्राई कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, तो वो तो फिर हायर की बात हो गई। राइट नाउ हम लोग अगर हमारे स्टडीज में बात करें तो वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज, हम सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इधर उधर उसको मूव करवा सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब आपको ये बात तो पता है इलेक्ट्रॉन का कुछ ना मास है, छोटा मास है पर है बहुत है, तो वो जो मास है सिर्फ उस मास की वजह से ही उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज है। अब हम लोग किसके बने हैं? एटम्स के मिलके बने हैं, राइट, सेल्स के मिलके बने हैं, उन सेल्स में न्यूक्लियस भी होगा, फिर उनके अंदर प्रोटॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, राइट। कोई भी और बॉडी, कोई भी मैटर अगर इससे बन रहा होता है, तो इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारी जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, दिस इज जस्ट अबाउट रिलेटेड टू द मास। हर किसी में हर कोई चार्ज रिलेट करता है मास का। ये बात तो सबको पता है कि भाई मासलेस बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, कभी भी मासलेस बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ये बात तो तुमको बिल्कुल दिमाग में घुसा लेनी है, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है हर एक बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास होगा।
जब उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा तो इसका मतलब उसके अंदर बने हुए जो सेल्स है, एटम्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स, उनके प्रोटॉन्स, उनके पास मास होगा। उनके पास मास होगा तो इसका मतलब उनके ऊपर चार्ज होगा। सो इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, हमेशा मास से एसोसिएट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। पूरे सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होता है दैट इज कंजर्व्ड, दैट डज नॉट चेंज एट ऑल। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो कि डेफिनेटली आपको नोट करनी चाहिए। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होता है यूनिट ऑफ चार्ज, राइट? सी, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, एब्रिविएटेड एज सी, हम उसको कैपिटल सी से लिखते हैं। तो जब कभी मुझे चार्ज लिखना होगा, व्हाट आई विल राइट +1 कूलम, ठीक है, -3 कूलम। तो एसआई यूनिट इज कूलम, कैपिटल सी। ठीक है, 1 कूलम। अब ये जो 1 कूलम चार्ज होता है ना, ये बहुत बड़ा चार्ज होता है, लाइक इट्स वेरी बिग चार्ज। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इतने इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स सी, 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला दिया जाए, उनके चार्ज को मिला दिया जाए, तब जाके क्या होगा, मुझे 1 कूलम ऑफ चार्ज मिलेगा। ठीक है, एंड जो कूलम है वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट हैं। ठीक है, उनका नाम है चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम। उनके नाम पे हम लोगों ने जो है, हम लोगों ने तो नहीं, बट ठीक है, उन्हीं के नाम पे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज को कूलम रखा गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 1 कूलम चार्ज इज वेरी बिग। कैसे भाई? 1 कूलम चार्ज का मतलब है कि 625 का मतलब है चार्ज ऑन 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को मिला के हम लोग बोलेंगे दैट इज 1 कूलम, है ना। और इसके दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस क्या किया, पॉइंट्स को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर दिया है और जो पावर्स है उनको इंक्रीज कर दिया है, बट दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट जो है करने में हेल्प करेगी डेफिनेटली। नाउ द होमवर्क फॉर यू ऑल इज, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, यू शुड डू इट। कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इफ द बॉडी हैज 1 कूलम चार्ज। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करना है अगर बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, बॉडी का चार्ज आपको दे दिया है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आपको खुद से देखना है, खुद से करना है। लेट्स सी, लेट्स टॉक इट अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करने हैं ऑफ द चेक पॉइंट। ये भी है आपका होमवर्क, सो प्लीज डू इट एंड सबमिट ऑन दी गूगल क्लासरूम्स, राइट। ये तो होमवर्क है ही है, साथ में हम लोग को क्या करना है, जो चेक पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट ए, उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, 1 to 5 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम्स पे सबमिट करने हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ को स्टडी आउट करेंगे। ठीक है, कूलम्स लॉ को स्टडी आउट करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली मैं सिखाऊंगी आपको हाउ टू डील विद इट, कूलम्स लॉ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ नहीं होता है। वी विल टॉक अबाउट दिस इन द लेटर लेक्चर। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and definitely do the homework, submit it on Google Classrooms, right? And definitely spread it out, click on the bell icon. This is important so that you will be notified. So thank you so much.